So let's continue with the MCQ of postmodernism, and we will continue and add more the concept of liberty in this video. So basically, this is the video of liberty topic, but we are continuing and adding the previous year question uh, of postmodernism. Okay, so which of the following is incorrect with regard to the postmodernism? So historical tendency. Postmodernism is like primacy of consuming consumption instead of knowledge, demo deconstruction of totality, yes, commonality of greatness. Now, who consider knowledge is power? So Michael Foucault. Which of the following is the postmodernist thinker? तो डेरिडा है, कांट नहीं है, लास्की नहीं है, कार्ल मार्क्स नहीं है. So the term postmodernism was first used in which of the following book? So postmodern condition book में यूज किया गया है फर्स्ट टाइम postmodernism. Now, who among the following are the postmodern? I would say PM thinker. तो निश्चय है, हेडगियर है, बर्डली नहीं है और ईसा से एडवर्ड सेड नहीं है. दैट्स आई wrote in my first page of postmodernism video. तो सी एंड डी दीज आर फ्रेडरिक निश्चय तो है और हेडगियर भी है. हु डिफाइंड postmodernism as incredulity towards meta narrative? तो he was Lyotard. Who among the following held the view that God is dead? So Nietzsche, concept of Superman and will to power. His concept was like man desire more power, ठीक है, over death, ऐसा कि will to die than will to power. तो मरने वाला फिर भी पावर के पीछे भागते रहता है. यही यही दुनिया है और यही सोसाइटी है. तो will to power is the ultimate aim as per Nietzsche. Correct match Michael Foucault. Wrong. Derrida, the birth of the clinic. I think this is right. Okay. Now match the following. Nietzsche का बुक है on the genealogy and morals. लियोटार्ड का बुक है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज. फूको का है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन और हेडगियर का है विंग एंड टाइम. So according to post-modern PM thinker, which attribute of knowledge does not exist? So objectivity. The PM were against or challenge the concept of objectivity. So they were like cognitive, normative, political. They objective नहीं था. Which of the following not correct? Michael Foucault, The Birth of Clinic, Derrida, Difference and Repetition. So this is not correct. एडगर बिंग एंड टाइम है. निश्चय का है ऑन द जीनोलॉजी एंड मॉडल्स. Who among the following ideology rejected the principle of universal theory of history? तो ये जो मेटा नैरेटिव को चैलेंज करता है, गारंट नैरेटिव को, तो दैट वाज पीएम. तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी से. ईशा बर्लिन 1958 में इनका बुक है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी. तो वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन. लिबर्टी इज सो इसेंशियल टू ह्यूमन लाइफ दैट हंड्रेड्स ऑफ आर्गुमेंट अगेंस्ट इट वोंट बी एनफ टू कन्विंस ह्यूमंस टू कॉम्प्रोमाइज इट. ठीक है. लिबर्टी इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग दैट एवरीवन डिजायर्स. फ्रीडम, लिबर्टी टू चूज व्हाट दे आर. सो कॉर्डवेल ने कहा है लिबर्टी इज अ कॉन्सेप्ट अबाउट हुज नेचर मेन हैव क्वारल्ड परहैप्स मोर देन अबाउट एनी अदर. इससे ज्यादा तो किसी चीज पे झगड़ा हुआ ही नहीं है. सबसे विवादित चीज है तो लिबर्टी, लिबर्टी, लिबर्टी. ठीक है. बड़ा से बड़ा रिवॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन लिबर्टी. Individual liberty is one of the central pillars of liberal political thought. So now the Greek political thought refused to accept the notion of individual liberty. तो ग्रीक तो सोसाइटी में बिलीव करते थे, कम्युनिटी ये सब है, तो इंडिविजुअल लिबर्टी को लोग नकारते हैं अगेंस्ट सोसाइटी एंड स्टेट. बट इन मॉडर्न टाइम्स स्टेट पीछे जाता है और ह्यूमन इंडिविजुअलिटी और उनका जो बात होता है वो आगे आता है. नाउ एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इंडिविजुअल, नॉट अराउंड द स्टेट. बेटरमेंट ऑफ स्टेट एग्जांपल इज चाइना, रिवॉल्व्स अराउंड द स्टेट नॉट इंडिविजुअल. तो फ्रीडम खत्म कर ऑथोरिटेरियन. ठीक है. तो ये सरकार बदल जाता है इस कॉन्सेप्ट की वजह से. The central idea to put the interest of individual ahead of society and state. The term liberty and freedom have almost similar meaning, but still they were used separately to express the ideological difference between the liberal and socialist thought. So, freedom is the state of being free from any oppression, while liberty is the freedom to act in one's own way. बेसिकली बहुत सारा इंटरव्यू आपने देखा होगा तो लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी. तो फ्रीडम इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑपरेशन, व्हाइल लिबर्टी इज द फ्रीडम टू एक्ट इन वन वे. सो दिस इज द माइन्यूट डिटेल. ये अगर कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो आप लिबर्टी और फ्रीडम का जो
चेंजेबल जो मीनिंग यूज होता है उसको समझते हैं। फिर से मैं समझाता हूँ। फ्रीडम इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम एनी ऑपरेशन। जैसे हम लोग का जो राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 14 टू 17 है, उसको उस 18 को, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ये है फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। और आर्टिकल 19 जो है ये क्या है, ये बेस्ड ऑन लिबर्टी। लिबर्टी जैसे आर्टिकल 21, ये क्या कर रहा है, आपको अपने वे में एक्ट करने के लिए बोल रहा है। सो दिस इज द माइन्यूट डिटेल्स, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। तो फ्रीडम इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम एनी ऑपरेशन, एनी ऑपरेशन, ठीक है। एंड व्हाइल लिबर्टी इज द फ्रीडम टू एक्ट इन वंस ओन वे। आप अपने दिशा में अपने डेवलपमेंट के लिए जो करना चाहें, सो दैट इज लिबर्टी। बट फ्रीडम इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम एनी ऑपरेशन। अब आते हैं हॉब्स के लिबर्टी के कॉन्सेप्ट पे। सो लिबर्टी इज मोर लाइक अ डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ, बट फ्रीडम, दैट इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम यू ब्रिटिश। तो ब्रिटिश का जो ऑपरेशन था, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रिटिश लिबर्टी नहीं, ब्रिटिश लिबर्टी दिया लेकिन ब्रिटिश से हम लोग फ्रीडम मिला, नॉट लिबर्टी मिला। इस कॉन्सेप्ट को समझना है। ब्रिटिश से हम लोग को फ्रीडम मिला, लिबर्टी नहीं मिला। लिबर्टी तो हो सकता है वो लोग बाई पॉलिसी देवर गिविंग अस, मिल रहा था, लेकिन आगे चलकर हम लोग लिबर्टी को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। सो लार्जर पिक्चर में आता है कि हमें पहले, सबसे पहले तो लार्जर पिक्चर में फ्रीडम चाहिए, और उसके बाद इनर सर्कल में हमें लिबर्टी चाहिए, लिबर्टी टू डेवलप इन आवर ओन वे, इन वंस ओन वे। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करिए। जो बिगनर होते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि बोथ साउंड सेम लिबर्टी, बट दे आर दी माइन्यूट differences. Now, definition of liberty पे आते हैं। हॉब्स का, by liberty is understood absence of external impediments, which impediments may often part of man's power to do what he would do. लॉक का है, where there is no law there is no freedom। जहाँ कोई लॉ नहीं है वहाँ कोई फ्रीडम नहीं है। रूसो का है, लिबर्टी कंसिस्ट इन ओबीडियंस टू जनरल विल। पेरिकल्स का है, फ्रीडम मेंट एडवांसमेंट एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी फॉर फुल सिटीजन। हॉब हाउस का है, द अनचार्टेड फ्रीडम ऑफ वन वुड बी द conditional servitude of all but one. Now, Karl Marx का है, freedom is recognition of necessity। हेगल का है, liberty is obedience to law। जब आप लॉ को फॉलो करेंगे तो आप अपने ओन वे में आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। लास्की का है, liberty is the absence of restraint upon the existence of those social condition in which is in modern civilization are necessary guarantee of individual happiness। एंशियंट एंड मॉडर्न लिबर्टी पे आते हैं बेंजामिन कॉन्स्टेंट का। इन हिज फेमस वर्क द लिबर्टी ऑफ एंशियंट कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मॉडर्न, he distinguished the liberty of ancient and the liberty of moderns. The liberty of ancient was participatory republican liberty, which gave the citizen the right to directly influence politics through debates and votes in the public assembly. The liberty of modern, in contrast, was based on the possession of civil liberty, the rule of law, freedom from excessive state interference. So we will continue from two concepts of liberty by Isa Barley. Thank you.